حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہوں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ تو اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہوتی ہے۔ جب دنیا آپ کو گھٹنے پر ڈھکیل دیتی ہے تو اس وقت آپ نماز کے لیے بہترین مقام پر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر نہیں ہے اور کوئی بھی پھول کانٹے کے بغیر نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر۔ سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک کہ یہ کشادہ نہ ہو جائے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ صحیح راستے دکھاتی ہیں۔ تکبر ایک ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسند جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے کرنے سے بچاتا ہے،
लेकिन इंसान को तजुर्बा गलत फैसले से ही मिलता है। हमारे माशरे में अक्सर तादाद ऐसी है जो किसी मलंग फ़कीर के बद्दुआ से तो डर जाती है, मगर अल्लाह के बताए गए अजाब से नहीं डरती। अपनी अंधेरी कब्र को रोशन करने की खुद तैयारी करें। आज लोग जिंदा इंसान से वफ़ा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। मुनाफिकों के हुजूम में एक वफ़ादार और मुखलिस इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सके। अच्छी तरबियत का असल इम्तहान तब होता है जब आप जवाब देने की ताकत रखते हों मगर खामोश रहें। किसी के बारे में गलत गुमान न करें, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। तुम बस अपनी दुआओं पर यकीन रखो, रास्ते निकालने का काम अल्लाह का है, तुम्हारा नहीं। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें कम रखें: अल्फाज, तवक्कात और लोग। ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। यह 5 आदतें जिनसे हमेशा बचें। तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है, हसद खुशियों को ख़त्म करता है, झूठ एतमाद को ख़त्म करता है, नफ़रत दिल को शयाह कर देती है और गफलत से तरक्की रुक जाती है। या अल्लाह, मुझे उस दिन रुसवा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी रोजी हलाल रखो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। जो फ़ैसला मेरा रब करता है, अर्श से फ़र्श तक वही बेहतरीन होता है। दोस्त हालात को बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। सब्र की 2 ही सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुशकिस्मत है वह औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और करता रहेगा। बेहतरीन है वह रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। सब्र करें, अगर आज़माने वाला अल्लाह है तो आज़माइश से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। ज़बान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर कोई पलट आए तो उसे थाम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी तो यही करता है। खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल का है, सब कुछ देकर कहता है और है कोई मांगने वाला। और कितनी तल्ख बात है ना, नाकामी का कोई वारिस नहीं होता और कामयाबी के 100 रिश्ते निकल आते हैं। जो तकलीफ़ अल्लाह के करीब कर दे वह तकलीफ़ नहीं बल्कि नेमत है। हम समझते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वह हमें अंदर से देखता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मिट्टी तले सो जाते हैं, अगर उन्हीं बातों पर मिट्टी डाल दी जाए तो ज़िंदगी पुरसुकून गुजारी जा सकती है। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें, यह नाराज़ होने के बाद भी इज़्ज़त और किरदार पे बात नहीं करते। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है, तुम यकीन तो रखो वह बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। तकब्बुर करके इतना टेढ़ा मत चलें
क्योंकि जोड़ी गई दीवारें अगर टेढ़ी हो जाएं तो गिर पड़ती हैं। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना समझदार लोगों का काम होता है। खामोशी और अदब दोनों इंसान के कद्र व कीमत में इजाफ़ा कर देते हैं, और बेशक तुम्हारे सब्र के बाद अल्लाह तुम्हारी चाहत से नवाजेगा। छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो, मुमकिन है वही अल्लाह की रजा का सबब हो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। खुशकिस्मत है वह इंसान जिसको दिन में 5 मरतबा अपने रब से मुलाकात का मौका मिलता है। वक्त जब भी लौट कर आता है या तो इम्तहान लेता है या इंतकाम लेता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके तो कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। वक्त साबित कर ही देता है, खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। दुनिया के सबसे मुखलिस शख्स आपके वालिद होते हैं। बदतरीन एहतराम वह है जो खौफ पर कायम रहे। बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। अपने इरादों में मुखलिस रहो, अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। मैं तेरी हर रज़ा में राज़ी हूँ या रब, बस मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज न करना। वाहिद अल्लाह की मोहब्बत है जो हर मतलब से पाक है। वह तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे चेहरे पर जाहिर नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि उससे ज़्यादा कोई तुमसे प्यार कर सकता है? ज़िंदगी जरा लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देते हैं। अल्लाह खूब जानता है कौन किस हाल में है। वह जानता है कि कौन बेबस और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और याद रखो, जितना मुश्किल वक्त होगा तुम अल्लाह को उतना ही करीब पाओगे। जब रोटी मज़दूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज़्ज़त और मर्द की गैरत। लोग बताते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो बात रवैये बताते हैं वही सच होता है। खुद को बर्बाद करने का पहला मरहला ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है। जब आप कुछ भी न कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। किसी के बदतमीज़ी से मत घबराएं, वह बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। 2 लोगों को जुदा करने में अक्सर किसी तीसरे का हाथ होता है। इंसानियत यही है कि अपने से कमज़ोर से बदला लेने की ताकत रखते हुए भी उसे माफ़ कर दें। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर होता है। हक सिर्फ वहाँ देखना चाहिए जहाँ हमारे अल्फाज और जज्बात की कद्र हो।